the topic that is adsorption. That is adsorption. This part we are discussing this time. Adsorption. In adsorption, yes, the day before yesterday, I had discussed what is adsorption, the accumulation of one species at the surface of another species. How many parts of adsorption are there? Then two parts, adsorbate and adsorbent. That is species which accumulate on the surface, that is adsorbate, and that which provide the surface for accumulation, that is adsorbent. Then examples of adsorption. Then after desorption, the process of removal of adsorbate from the surface of adsorbent. Then difference between adsorption and absorption. Difference with one example, that silica gel and dry calcium chloride both are placed in moisturous air, then both are remove the water vapor from that moisturous air, but the calcium chloride remove the water vapor by the absorption and silica gel removed by adsorption. Then after mechanism of adsorption, why adsorption takes place. Then after why adsorption is always exothermic. These topics are clear. Now I need to start types of adsorption. So types of adsorption. So how many types of adsorption is here? Then adsorption is of two types: physical adsorption or physisorption and chemical adsorption or chemisorption. Physical adsorption or physisorption and chemical adsorption or chemisorption. We will discuss these two in the form of the difference. Whatever the 8 points written here, that 8 points are given in पैराग्राफ फॉर्म. ये पैराग्राफ फॉर्म में आपका दिया हुआ है, so either read the paragraph form or direct this one. So what is difference between physical adsorption and chemical adsorption, or what is physical adsorption, what is chemical adsorption? So first difference, in physical adsorption, the force of attraction which present between adsorbate and adsorbent, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वीक वंडरवॉल फोर्स. वो वीक वंडरवॉल फोर्स होता है. विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, दैट इज वीक वंडरवॉल फोर्स. बट इन केमिकल एडजॉर्प्शन, the force of attraction present between adsorbate and adsorbent is chemical bond, that is ionic bond or covalent bond. First difference. Second difference, because it is weak van der Waals force, so its heat of adsorption is very low. Heat of adsorption or enthalpy of adsorption is very low, that is 20 kJ to 40 kJ per mole. But it is chemical bond formation in chemical adsorption, so it has heat of adsorption or enthalpy of adsorption is high, that is 40 kJ to 400 kJ per mole. Now next, because it is having weak van der Waals force, so it is reversible in nature. ठीक है, ये रिवर्सिबल नेचर होता है. मीन्स, और वो रिवर्सिबिलिटी क्या होगी? बिकॉज आई इन्फॉर्म्ड यू कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, बट इन फिजिकल the heat of adsorption is very low, so it reduces, the physical adsorption reduces by increasing temperature. Why? Because desorption started. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे,
एडजॉर्प्शन की जगह पे डीजॉर्प्शन होने लगेगा, मतलब रिमूवल होने लगेगा। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। एंड ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, हियर कंफ्यूजन इज हियर, रिमेंबर दिस, two question will be asked. One question will be asked कि what is the effect of temperature on adsorption, एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सो क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन, इट इज नॉट क्लैरिफाइंग दैट इट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है केमिकल है ये नहीं बता रहा है, केवल कह रहा है कि एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, both the adsorption are exothermic as you know. So in both the cases, चाहे physical हो चाहे chemical हो, the adsorption will be decreased with temperature, means inversely proportional to temperature. So adsorption is always inversely proportional to temperature. तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि what is the effect of temperature shown on adsorption, then you will say adsorption is inversely proportional to temperature, means adsorption is decreases or increasing temperature. But if the question will be there, listen carefully, if the question will be there, what is the effect of temperature on physical adsorption and chemical adsorption, तो फिजिकल केमिकल दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट व्हेन फिजिकल और केमिकल का कंपैरिजन करेंगे, जब फिजिकल और केमिकल का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, देन इन फिजिकल द टेम्परेचर विल शो इफेक्ट इमीडिएटली, बट in chemical temperature will not show the effect immediately. That's why physical में ये कहा जाता है कि in physical the adsorption, means physical adsorption is inversely proportional to temperature, means it decreases or increasing temperature, and chemical adsorption is directly proportional to temperature but for some till some specific temperature. केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, इसमें जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉर सम टेम्परेचर और टिल सम यूनिट ऑफ टेम्परेचर इट विल बी इंक्रीज, क्योंकि इसको 80 से 240 केजे तक, ठीक है, आपका इसका एंथैल्पी है और इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़ा बन रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन it doesn't means कि always directly proportional to, that is just the difference between physical and chemical. physical chemical में जब difference आप कहेंगे तब आप कह सकते हैं कि फिजिकल में टेम्परेचर बढ़ाने पे तुरंत डिक्रीज होने लगता है, बट केमिकल में टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ी देर तक बढ़ता है और फिर डिक्रीज होने लगता है। बट ओवरऑल एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दो क्वेश्चन पूछेगा, फिजिकल और केमिकल से पूछेगा तो फिजिकल में कहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, केमिकल में कहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन अगर डायरेक्ट एडजॉर्प्शन कहेगा दैट विल बी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट, बिकॉज इट्स हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लेस, so it not required any activation energy, and it require activation energy means some extra amount of energy which required to form the bond, which is not present in environment, and we need to give the एक्स्ट्रा एनर्जी, जो उसके पास नहीं होता, हमको बाहर से कुछ एनर्जी देनी होती है। दैट वी विल डिस्कस इन केमिकल काइनेटिक्स, ये टॉपिक आपका केमिकल काइनेटिक्स में है, एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एडजॉर्प्शन में रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, वीक वंडरवाल फोर्स बनाना होता है, तो अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए होती, उसके पास जो एनर्जी होती है उसी से वो बना लेता है। बट केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वी रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एनर्जी, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, फिजिजॉर्प्शन, देखिए आ गया, फिजिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड केमिजॉर्प्शन क्या कर रहा है, इट फर्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए फर्स्ट इंक्रीज लिखा है, फर्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देन डिक्रीज। ये मत सोचिएगा
कि केमिकल एडजॉर्प्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है? नो, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन फीजी एंड केमी की फीजी में लो टेम्परेचर पे होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे तुरंत डिक्रीज होने लगता है, बट केमी जॉब्सन में थोड़ा हाई टेम्परेचर तक इंक्रीज होता है और कुछ टेम्परेचर के बाद फिर ये भी डिक्रीज होने लगता है। मीन्स ओवरऑल एडजॉर्प्शन इज inversely proportional to temperature because adsorption is exothermic process. नेक्स्ट, फीजी जॉब्सन इज नॉन स्पेसिफिक नेचर, मतलब फीजी जॉब्सन में वंडरवाल फोर्स है और वंडरवाल फोर्स आपको पता है कि किसी के भी बीच अराइज हो सकता है, दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल, आयन, नॉन आयन, वट एवर इज देयर। बट केमी जॉब्सन और केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, एंड यू नो कि केमिकल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन ऑल द थिंग्स, कुछ स्पेसिफिक के साथ ही केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड मीन्स केमी जॉब्सन इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, जहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन सकता है बस वहीं पे ये बनता है, नहीं तो नहीं हो बनता है। नेक्स्ट, in increase with the increased surface area. So this is the seventh point is not the difference. Seventh point is the similarity between physical adsorption and chemical adsorption. सेवेंथ पॉइंट जो है फिजिकल और केमिकल के लिए सिमिलैरिटीज है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, देन योर आंसर विल बी देयर, जो उस दिन बताया गया था आपको, शायद आपको क्वेश्चन याद हो, इफ यू विल रिमेंबर, कि वाई पाउडर्ड पाउडर्ड फॉर्म ऑफ एडजॉर्बेंट इज मोर इफेक्टिव देन, ठीक है, इट्स सॉलिड फॉर्म। तो आपको बताया गया था ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सो दिस पॉइंट इज हियर कि व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया the adsorption will increase, that is either physical adsorption or chemical adsorption. So this 7 point is not the difference, this is the similarity. The similarity between physical adsorption and chemical adsorption is what, that physical and chemical both are increase with increasing surface area of the adsorbent. Adsorbent का surface area बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ेंगे। Next, the difference, it form means physical adsorbs from multi-molecular layer, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन की जो लेयर बनती है उसमें पार्टिकल की साइज छोटी होती है, दैट पार्टिकल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूल एंड दैट मल्टी मॉलिक्यूल फॉर्म, ठीक है, लेयर। बट इन केमिकल एडजॉर्प्शन सिंगल पार्टिकल से केमिकल बॉन्ड बनता है, सो इट इज यूनिमोलिक्यूलर लेयर। इसमें जो लेयर बनती है उसमें सिंगल सिंगल पार्टिकल सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बट इसमें जो है फर्स्ट पार्टिकल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूल एंड दैट मल्टी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म द लेयर, सो दिस इज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। सो once again, how many types of adsorption is there? Adsorption is of two types, physical adsorption and chemical adsorption. First of all, in physical, which bond or which force of attraction is present between adsorbent? Then in physical, the weak van der Waals force is present. In chemical, chemical bond is present. In physical, the heat of adsorption is very low, that is 20 to 40 kJ per mole. In chemical, the heat adsorption is high, that is 40 to 400 kJ per mole. Next, physical adsorption is reversible in nature, chemical adsorption is irreversible in nature. Physical adsorption not require any activation energy, chemical adsorption require activation energy. Physical adsorption takes place at low temperature and on increasing the temperature it becomes decreases. Chemical adsorption requires slightly more temperature than the physical adsorption and it first increases with temperature then after decreases. Next, physical adsorption is not specific in nature, chemical adsorption is highly specific in nature. Physical adsorption and chemical adsorption both are increasing with increasing surface area of adsorbent, and last, physical adsorption from multi-molecular layer and chemical adsorption from unimolecular layer. So this is about the physical and chemical adsorption. Now the next term, see,
Physical, chemical is over. Now we are in the last part of this, that is adsorption isotherm. So what is adsorption isotherm? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? तो आइसोथर्म का मतलब तो आपको क्लास 11 में मिल गया होगा. देयर वर थ्री टर्म्स: आइसोथर्म, आइसोकोर, आइसोबार. Isotherm is the graph at constant temperature. Isocore is the graph at constant volume. And isobar is the graph at constant pressure. तो यहाँ पे आइसोथर्म है, सो कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ. अब ग्राफ किसके बीच बनेगा? द लॉजिक इज दैट, तो ग्राफ विल बी फॉर्म बिटवीन x by m and p. Now what is x by m? What is p? So x by m, in this x is the amount of एडजॉर्बेट मतलब कितना एडजॉर्बेट है उस पर. ठीक है, जैसे आप कहते हो एक बुक आपने रख दिया, उस पर आपकी धूल आती गई और फिर आपने उसको वेट किया तो वो 50 ग्राम हो गया, 30 ग्राम हो गया. ऐसे अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट मतलब कितना अमाउंट एडजॉर्बेट का है. m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट. जैसे हम डस्टर ले लेते हैं. ठीक है, डस्टर से हमने क्या किया, ग्रीन बोर्ड को, चॉक को, ठीक है, जो लिखा हुआ था उसको इरेज किया. तो ग्रीन बोर्ड पे जो चॉक पार्टिकल थे वो एडजॉर्बेट थे, ग्रीन बोर्ड एडजॉर्बेंट था. जब हमने डस्टर यूज किया तो चॉक पार्टिकल डस्टर पे आ गए. तो दैट चॉक पार्टिकल आर एडजॉर्बेट एंड डस्टर दैट इज एडजॉर्बेंट. डस्टर का वेट मान लीजिए कि 10 ग्राम था या 50 ग्राम था. चॉक पार्टिकल उस पर जो आपके अटैच हुए फिर उसका वेट किए तो वो हो गया, ठीक है, 55 ग्राम. तो 50 ग्राम डस्टर था और 5 ग्राम उस पर क्या आ गया, 5 ग्राम आ गया एडजॉर्बेट. तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट इज 5 ग्राम एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज 50 ग्राम. मतलब 50 ग्राम पे 5 ग्राम क्या है, एडजॉर्ब हुआ है. एंड पी इज द प्रेशर ऑफ दैट, कि अब उसके एडजॉर्ब होने पे कितना प्रेशर लगा. ठीक है, दैट इज पी. सो व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? ध्यान से सुनिए. द ग्राफ और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द, ठीक है, फॉर द या बिटवीन द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट. x बाई m को बोला जाता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट. पर यूनिट मास आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ये x बाई m को बोला जाता है. So what is adsorption isotherm? It is a graphical representation between the amount of adsorbate at per unit mass of adsorbent and its pressure at constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे अमाउंट बढ़ाते गए तो प्रेशर में क्या चेंजेज आएंगे, दैट इज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. सो व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? पहले ये जान लीजिए कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफ है. ग्राफ किस कंडीशन में है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है. और कांस्टेंट टेम्परेचर में किसके किसके बीच है, then it is the between the amount of adsorbate at per unit mass of adsorbent and pressure and its pressure. Now see, ये ग्राफ आपका जो दिखेगा वो ग्राफ आपका ये है. सी, पहले आप हेडिंग डालेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देन यू विल राइट
the graphical representation between the amount of adsorbate at per unit mass of adsorbent with pressure at constant temperature or at a particular temperature, that is called adsorption isotherm. Then this graph, अब ये ग्राफ आपका रहेगा. इस ग्राफ में सी first line is there are three isotherm, one line is one isotherm at a particular temperature. तीन isotherm है, one is at 195 Kelvin, another is at 244 Kelvin and another is at 273 Kelvin. So why I am showing this one? Remember same यही बना करके दे देगा ग्राफ, यहाँ लिख देगा A, B and C and question will ask कि arrange these isotherm in increasing order of their temperature. इन आइसोथर्म को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर टेम्परेचर पे अरेंज करिए. तो टेम्परेचर से ये रिलेट कर रहा है, रिमेंबर दिस, एंड दिस इज एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जो ग्राफ सबसे नीचे है जिसमें एडजॉर्प्शन सबसे कम हुआ है दैट विल बी एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जो ग्राफ सबसे नीचे होगा, सबसे ठीक है कम एडजॉर्प्शन वाला होगा, उसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा. जो ग्राफ सबसे ऊपर होगा दैट इज सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका जो है एडजॉर्प्शन हुआ रहेगा दैट इज हाईएस्ट टेम्परेचर. तो आपको ये चीज़ याद रखना है एंड यू विल राइट द आंसर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए है, बी है, सी है, तो सी, बी एंड ए, ये चीज़ याद रखना है. दैट्स वाई इसी तरह सेम ग्राफ बना देगा, बस ए बी सी लिख देगा. नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को इंफॉर्मेशन के बाद टू साइंटिस्ट हैव एक्सप्लेन दिस. इसको दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज देयर? देन टू टाइप्स. One is Freundlich adsorption isotherm given by Freundlich, and second is Langmuir adsorption isotherm given by Langmuir. Now Langmuir is not in your syllabus. Langmuir आपके syllabus में नहीं है. In your syllabus only Freundlich is there. So next heading we will discuss, that is Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. See. Freundlich, Langmuir is not in your syllabus. Langmuir आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको बता दिया गया कि दो होते हैं. Now, what is Freundlich adsorption isotherm? तो Freundlich adsorption isotherm is in two case. Freundlich adsorption isotherm दो केस में है. One है that adsorbate is gas which adsorb on solid. Solid. So adsorbate is gas, adsorbent is solid. And second is adsorption from solution. Adsorption from solution. Remember this, हमको दो पढ़ना है. एक एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड और दूसरा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन का मतलब है दैट इज एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड. लिक्विड का सॉलिड पे एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमको दो केस में पढ़ना है. फर्स्ट है दैट इज एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड एंड सेकंड है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन दैट इज लिक्विड ऑन सॉलिड. सो फर्स्ट वन हियर इट इज गिवन, जो सामने आपके दिया है दैट इज गैस ऑन सॉलिड. ये गैस ऑन सॉलिड के लिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉर गैस ऑन सॉलिड. नाउ व्हाट इज, ठीक है. सो फिर से देखिए, फर्स्ट हेडिंग रहेगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. यू विल राइट कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. देन यू विल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. Then comes back, you will write types of adsorption isotherm. Then there you will write there are two adsorption isotherm. First one is Freundlich, second one is Langmuir. Langmuir के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे, it is not in syllabus. Then after first means single heading आपका रहेगा, तो Freundlich adsorption isotherm will be heading, and then you will write Freundlich adsorption isotherm is
in two condition. First one, that is gas adsorb on solid, and second one, that is adsorption from solution. Second one आपको दिखा रहे हैं, that will be adsorption from solution phase. This is also Freundlich adsorption isotherm. Now gas on solid, first heading रहेगा adsorption of gas on solid. In this you will write this statement कि according to Freundlich adsorption isotherm, the amount of adsorbate adsorbed at per unit mass of adsorbent is directly proportional to fractional power of its pressure. See this, the amount of adsorbate adsorbed per unit mass of adsorbent is directly proportional to fractional power, that is 1 by n of its pressure. ये रिलेशन निकाला गया है कि जितना अमाउंट एड्जॉर्ब होता है पर यूनिट मास में, उसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल पावर ऑफ इट्स प्रेशर. जितना उस पर एड्जॉर्ब होता है पर यूनिट मास में, उसकी वैल्यू जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल पावर ऑफ इट्स प्रेशर. रिमेंबर दिस, फ्रैक्शनल पावर. सो फ्रैक्शनल पावर इज 1 बाई एन, और 1 बाई एन फ्रैक्शन में कब आएगा? व्हेन एन विल बी मोर देन 1. जब n 1 से ज़्यादा होगा, 2 3 4 5 6, देन इट विल बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म. ठीक है. नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, देन देयर विल बी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो देयर विल बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई k इज हियर. सो k इज द कांस्टेंट. सो फार्मूला इज देयर कि x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1 बाई n, वेयर द n विल बी मोर देन 1. फार्मूला ये है कि द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल पावर ऑफ इट्स प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है. एंड देन आफ्टर ये लिखेंगे x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर n, p पावर 1 बाई n, वेयर n इज मोर देन 1. देन नीचे प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कांस्टेंट लगाएंगे तो हो जाएगा x बाई एम इक्वल टू k इंटू p पावर 1 बाई n. नाउ अब ये सब नहीं, सीधे ये डायग्राम. ठीक है. डायग्राम, अब डायग्राम दो बनेगा इसमें, एक लॉग फार्मूला का, उसी फार्मूला का x बाई एम इक्वल टू एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी पावर 1 बाई एन. इसका दोनों साइड का लॉगरिथम कर दिया गया, तो ये हो गया लॉग x बाई एम, ये हो गया लॉग k प्लस लॉग p पावर 1 बाई एन. तो 1 बाई एन आगे आ गया, तो हो गया 1 बाई एन लॉग p. सो पहला फार्मूला आपका लिखा जाएगा जो ये फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला यू विल राइट just after the statement this formula, and then after you will draw this graph. इस ग्राफ को बनाएंगे, इसमें तीन आइसोथर्म ना बना करके केवल एक आइसोथर्म बनाएंगे. ठीक है. दिस इज विदाउट लॉग ग्राफ. और जब हम लॉग ले लेंगे, लॉग फार्मूला फिर लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, एंड देन आफ्टर दिस ग्राफ. इसमें log x बाई एम है, log p है, तो ये स्ट्रेट हो गया है, एंड इसमें विदाउट log है तो ये कर्व्ड है. नाउ इसमें ये वैल्यू याद किए रहेंगे. कभी कभी क्या करता है, ग्राफ बना देगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप हियर. ठीक है, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप इन फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ गैस ऑन सॉलिड, तो दैट विल बी स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई एन. बस ग्राफ बनाना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना है. नेक्स्ट इज हियर, एज यू नो, यहाँ पे टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट पूछ. ठीक है. तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर पूछता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये क्या होता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है और नीचे आता जा रहा है. तो एट हाई टेम्परेचर, जब बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, सो दिस लाइन विल बी, लाइन प्रेशर के क्या हो जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी। तो ये पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the adsorption isotherm becomes flatter and flatter, and at very high temperature it becomes parallel to the pressure axis. Now next, that is adsorption from solution phase. In adsorption from solution phase, adsorption from solution phase जो है इसमें सही है गैस ऑन सॉलिड वाला ही सेम स्टेट amount of adsorbate per unit mass of adsorbent is directly proportional to fractional power of। अब गैस था, यहाँ गैस था तो प्रेशर आया था, वहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का क्या होता है कंसंट्रेशन, तो बस इस प्रेशर के जगह पे क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन। सी अमाउंट ऑफ adsorbate per unit mass of adsorbent is directly proportional to fractional power of concentration of that solution। जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा एडजॉर्प्शन उतना कम होगा। इसके फॉर्मूला में जस्ट P के जगह पे C लिख देंगे, मीन्स X बाई M is directly proportional to C power 1 by N, where N will be more than 1। फिर आपका फार्मूला बन जाएगा x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू सी पावर 1 बाई एन। जस्ट p के जगह पे c लिख देंगे, p के जगह पे c लिख देंगे, ग्राफ में ये वाला ग्राफ बना देंगे, p के जगह पे c लिख देंगे, फिर लॉग फार्मूला p के जगह c एंड लॉग ग्राफ में p के जगह पे c एंड रेस्ट विल बी सिमिलर। बाकी सब कुछ आपका वही रहेगा ये आपका। सो दिस इज फ्रॉन्टलेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दैट इज फॉर गैस ऑन सॉलिड एंड फॉर फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए, गैस मास्क बनाने के लिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, सिलिका जेल वाला आ गया, कलर मैटर को सॉल्यूशन से रिमूव करने के लिए, हेट्रोजीनस कैटालिसिस में, इनर्ट गैस के सेपरेशन में, कुछ डिजीज को क्योर करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो हमने देखा था मेटलर्जी में, वहाँ पे एडजॉर्प्शन यूज होता है, एंड इंडिकेटर के फॉर्म में यूज होता है। इतना है। और क्रोमेटोग्राफी, ये तो आपको पता ही है क्रोमेटोग्राफी। So this is about the adsorption. Now see adsorption topic is over. अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक केवल बचा हुआ है, that is catalyst catalysis and types of catalyst catalysis, adsorption theory of heterogeneous catalysis. So in next class I think this chapter will be over. फिर से देख लीजिए, सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन पढ़े, एडजॉर्बेंट पढ़े, then after examples of adsorption, then desorption, then one common term that is sorption, difference between adsorption absorption with example, then mechanism of adsorption, that why the adsorption is takes place, then after why adsorption is always exothermic, and then